Jai Shri Ram. We will start. Firstly, sprinkle water on yourself and on all the puja samagri. Om pavitraha pavitro va sarvo sangatopivah yasmaret pundarikaksham sabahya bhentara suchi. Now take a drop of water in your right hand and you're going to sip this as I chant the mantra. You will do this 3 times. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Now you will take a drop of water in your hand and you will wash your hand. You will do this 3 times as well with mantras. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. On your right hand ring finger, you will put on your kus ring, your paiti. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturva Prasava Utpunam Yachidrena Pavitrena Suryasya Rasmibhi Tasyate Pavitra Pate Pavitra Putasya Yat Kama Pune Tachakeyam. Using your right thumb, you will give yourself a Chandan Tika. Om Chandanam Vandate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harate Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light your diya. Om Bhodhipa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamaya Kritam Pujam Grihate Pravardaya Om Deepaya Namaha. We will now go on with Ved mantras. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyana Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vridashavaha, Swastina Pusha Vishwavedaha, Swastina Staraksho Rarishtha Nemi, Swastino Brihaspatir Dadhatu. Om Paya Pridhivyam Paya Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodha Payasvati Pradishah Santu Mahyam. Om Vishnu Raratmasi Vishnu Shnaptretho Vishnu Syurasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Aditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata. Om Dhyau Shantirantariksha Shanti Prithivi Shantirapah Shantiroshadayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishvedevah Shantir Brahma Shanti Sarvagvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. Om Vishwani Deva Savitara Duritani Parasuva Yad Bhadram Tanna Asuva. Om Ano Bhadrah Kratavo Yantu Vishwato Dabdhaso Aparitasa Udbhida
देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजुयतां देवानागं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागं सख्यम् उपसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्दु जीवसे। ओम तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् आर्यमनं वरुणगं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्कर। ओम तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुव तदश्विना हिनुतं दिश्नायुगम्। ओम तमीशानं जगतस्तुषस्पतिन्धियं जिनवमवसे हुमहे वयम् पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृषदश्वा मरुतः पृश्ने मातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मया अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं संस्थनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि दिशतायुर्गन्धो। ओम अदितिर्ध्योर अदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ। ओम तम पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यै नाकं गृह्णानः सुकृतस्य लोके तृतीये प्रेष्ठे अधिरोचने दिवः। ओम आयुष्यं वर्चस्य ग्वं प्रायस्पौषमोदविदम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशताधुमा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम हे रंब त्वमेह्येहि अंबिका त्र्यंबकात्मज
सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितो पितः नागास्य नागहारत्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधै दिव्यै पाशाङ्कुश परश्वधै आवाह्यामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतो इहागत्य गृहान् त्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अंजनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ओम ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुड सीतामुख कमल मिल्ललोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्ग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। ओम शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम अभयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागपाशं च घंटां डमरुक सहितं अंकुशं वाम भागे नाना अलंकार दीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्येच जार्यापहा। ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंगधामेश्वरी दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंड कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां तां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियाम्। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। जय गणेश गिरिजासुवन मंगलमूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान राम आत्मा पोषण हरे जय 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 दशरथ के दुलारे ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुवीर भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी
निज दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहुँ पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम आनंद के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम्हारो यश गावे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चारों भेद भरत हैं साखी, तुम भक्तन की लजा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाई। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम अपरम पारा, चारों वेदन जाहि पुकारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन्हो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, नहीं को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावत को न तुमरो पारा। भरत नाम तुम्हारो उरधारो, तासु कबहुना रन में हारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरत होता शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताके रन जीते नहीं कोई, युद्ध जुड़े यमहु की न होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाउ पलोटत, नवनिधि चरणन में लोटत। सिद्धि अतरह मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। और हूँ जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते को तीन संसारा, रचक न लागत फल की बारा। जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताको मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्मा अखंड अनूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्य सत्य सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरीपति कीन्ही, तुमने भक्ति सब सिद्ध दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज प्रचारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु रखो लाज। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति रूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजिए दुंदुभि शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के ओर होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आवागमन मीटे ही केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। दिनहु काल ज्ञान जो ल्यावे, तुलसी दलाउर फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सोनर सकल सीधत पावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाय। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, गिरिजानंदन 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 मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक दंत जय मोरया, गौरी सुत जय मोरया, एक दंत जय मोरया, गौरी सुत जय मोरया, जय लंबोदर मोरया, अग्रदेव जय मोरया, जय लंबोदर मोरया, अग्रदेव जय मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विघ्न विनाशक मोरया, जय भूमेश्वर मोरया, विघ्न विनाशक मोरया, जय भूमेश्वर मोरया, गजानना जय मोरया, विद्यावदीति मोरया, गजानना जय मोरया, विद्यावदीति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया, सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया, कृपा सिंधु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया, कृपा सिंधु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया, भवानी नंदन मोरया, जय शिव नंदन मोरया, जय मोदक प्रिय मोरया, कष्ट विनायक मोरया, जय मोदक प्रिय मोरया, कष्ट विनायक मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति 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 मोरया। Jai Shri Krishna. Gita Part, Chapter 3, Shlok 38. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Dhumena Vriyate Vahanir, Yatha Darsho Malena Cha, Yatholbena Vrito Garbhas,
तथा तेनेदमावृतम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। फिर से एक बार। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा देशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ कहा था, और क्या कहा पिछले श्लोक में? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि जो भी पाप होता है दुनिया में वो काम से ही उत्पन्न होता है। उद्भव, काम से ही उत्पन्न होता है। और कहता है यही यहां पे इस श्लोक में कि जैसे धूम क्या है? धुआं, स्मोक। जब धुआं होते हैं तो हम अग्नि को दिखाई नहीं देता है। When there's too much of smoke, or when there is smoke, then we can't see the fire. तो अग्नि धुएं से ढके हुए है। और आगे जाकर कहते हैं आदर्शः। आदर्शः क्या है? आईना। आईना का अर्थ है मिरर। जैसे आईने पर मलिन धूल, डस्ट, तो जब धुआं होते हैं हम आग को नहीं देख सकते हैं, जब धूल होते हैं हम आईना को नहीं देख सकते हैं, और आईना को हम नहीं देख सकते हैं, उसका परिणाम क्या है कि हम अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। When the mirror is covered with dust, then we can't use the mirror. What does that mean? That means we can't see who ourselves in the mirror. तो उसी तरह यथा उल्बेन, उसी तरह उल्बेन, उल्ब क्या मतलब? का मतलब है कोक, वूम। आवृतः ढके हुए है, इज कवर्ड। गर्भः जो कोक के अंदर है, वो अजन्मा बच्चा, that unborn child is in the womb covered in the same manner that the smoke, fire is covered by the smoke, that the mirror is covered by the dust. Tatha, so tena idam avritam, this lust is also covered by what? By this material body, because this material body is connected to the materialistic ideals, जो इच्छाएं है, देह से होता है। तो आत्मा जब देह से ढके हुए है, इन इच्छाओं से भी जुड़ित होते हैं। When the Atma is covered by this body, it also gets attached to the material desires. And we cannot see the Atma. Just like we cannot see the fire for the smoke, we cannot see the embryo for the womb. तो उसी तरह ये प्राण जो है, ये आत्मा जो है, देह से ढके हुए हैं, और देह इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से जुड़ित है। The body is connected to all the desires of the sense organs. So because of its connection with the body, the Atma too becomes connected to those
desires, those sensual desires. तो यहां जब भगवान काम के बारे में बताते हैं, ये काम जो है, it is not only sexual lust. जो भी इच्छाएं हैं, all the desires, material desires, come under the umbrella term of काम or lust in this श्लोक. तो जो भी कामनाएं हैं जो देह से संबंधित है, भगवान उसके बारे में बता रहे हैं. So Bhagwan Shri Krishna is talking about all the physical desires that we have that are connected to our sense organs. And once we are attached to these desires, we can't see the true us, which is the Atma. Just as we can't see the embryo because it is covered by the womb, we can't see the fire because it is covered by the smoke, we can't see the Atma because it is covered by the body. So what this means then, and Bhagwan will go on to explain, is that we should not become too attached to the body. ये देह केवल एक माध्यम है. इस यात्रा के लिए, आत्म के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आत्म की देह की आवश्यकता होती है. For the Atma to progress, a body is necessary. The body is merely the vehicle. It is not the Atma. तो ये भ्रम है कि मैं इस देह हूं, ये देह हूं. I am not this body. मैं आत्मा हूं, which is beyond the body. तो भगवान हमें बता रहे हैं, सबक दे रहे हैं, केवल अर्जुन को नहीं, हमको भी, कि हमें इस देह पर आसक्त नहीं होना चाहिए. We should not become too attached to this body. That does not mean now that we must abuse the body. हम इस देह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यही माध्यम है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए. It is the body that will help us in our spiritual journey. So we must take care of the body. We mustn't abuse it, but neither must we obsess over the body. ये संतुलन के बाद जो भगवान कह रहे हैं, यही पे आते हैं कि देह के बारे में जो होता है, ये संतुलन होना चाहिए. There must be a balance. We must not neglect the body, nor must we obsess over the body. We must keep the body in good shape that it can take us on our spiritual journey. That means we mustn't do things to harm our body. As much as the Atma is important, the body is also important for the Atma to make this journey. So we need to, हमें इस देह का पालन पोषण करना चाहिए. We must take care, we must nourish, but we must not obsess, because there is more to us than our bodies. Jai Shri Krishna. Jai Shri Ram. We're now going to have Rama in part, and the part that we're going to be doing today is in Balkand, Doha 164. But let us begin with the Ramayana invocation. Jahi sumirat siddhi hoy Sitaram Gananayak Karivar Badana Karo Anugrah soy Sitaram Buddhirasi Shubha Guna Sadana मूक हो इवाचाल सीताराम पंगुचरहि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल सीताराम द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम सीताराम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उरधाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह सीताराम उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह सीताराम
करौ कृपामर्दनमयन वन्दो गुरुपदकञ्ज सीताराम कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्ज सीताराम जासु वचन रविकर निकर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। Please follow on your screens. जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनु काऊ, एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सत हो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कहतापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालहु तुम पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छारी महिषा, तप बल विप्र सदा बरिआरा, तिन्ह के कोप न को रखवारा, जो विप्रन वश करहु नरेशा, तो तुम वश विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरि आई, सत्य कहु दो भुजा उठाई, वे प्रश्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हु काला, हर्ष उराउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा, एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार बुझाऊ निज भुलाऊ निज, कहू तो हम ही न खोरी, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। अभी हम लोग बालकांड के उस प्रसंग पर है जहां पर राजा प्रताप भानु की कहानी वर्णित किया जा रहा है। So we are busy with that episode of Balkand in which the story of Pratap Bhanu is being related to us. और प्रताप भानु अपने आप को एक मुनि के आश्रम पर मिलता है। He finds himself at the ashram of a muni. और तुलसीदास के अनुसार ये कपि जो है, ये मुनि जो है, ये एक कपटी मुनि है। It's actually a muni in disguise. It is a previous king who was an enemy of Pratap Bhanu, who is now disguised as a muni. Therefore, Tulsidas refers to him as Kapata Muni. So there's a conversation that is taking place between the two. इन दोनों में वार्तालाप हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रही है प्रताप भानु और मुनि के बीच में एक बातचीत हो रही है। और अब आज के पाठ में ये जो विप्र है, राजा जो है, यानी कि प्रताप भानु जो है, ये मुनि से कुछ मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर समथिंग, एक वर मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर अ boon. He's actually asking for the Muni to grant him some special powers. और वो क्या है? वो कहते हैं that I should not be afflicted by old age.
Jara, the word jara is used. Jara marana dukh rahita tanu. Jara means old age, budhapa. So he says, I should not be affected by budhapa, marana, nor should I be under the sway of mrityu, of death. Mera sharir isse rahit hona chahiye, tanu rahita. I should not, my body should not be under the control of old age, neither should it be under the control of death. I should have control over these things. Aur samar jite janu ko. Samar means battle, sangram, war. So sangram mein mujhe koi na jeet sake. And I want that in any duel that I engage in any war that I engage in, I should always return victorious. Nobody should be able to defeat me. Ek chhatr ripu hi na mahi. Raj kalp sat ho. Aur so kalp tak, for 100 cycles, Prithvi par mera akhand rajya rahe. Ek chhatra means akhand, unending. I must have unending power and rule over this earth, Prithvi. So these are the things that Pratap Bhanu is asking of this Muni. So the Muni then replies that, O king, aisa hi hoga. This is exactly what will happen. So in other words, I am granting these wishes for you. But parantu ek baat kathin hai. But there's going to be one challenge that you are going to have to face. So you will not be afflicted by old age. You will not experience death. You will have unending, infinite power on this earth. But there's going to be one problem. Usse dhyan se suno. Listen to that carefully. He says, you will enjoy all these things, except you have to be very careful of the Brahman class. Ek Brahman kul ko chhorkar काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवावेगा. Even death will be your servant. You will go to the extent of even having death to be your servant. But Brahman kul ko chhorkar. However, you have to be careful of the Brahmans. Now we need to understand that the Brahman of the period in which Sri Ramchandra ji existed may not necessarily be the Brahman that we understand today. Brahman is that person who is Vedpati, who has studied Vedas, who has thorough knowledge of scriptures, who is able to lead from the front. Purohita. Purohit means one who leads from the front, who is able to lead by example. So the definition of a Brahman is very important. It is not to be treated in the way in which we may treat the word Brahman today. For us, Brahman is, if you have a particular surname, you are Brahman. Whether you have read Vedas, whether you have read Gita, whether you know any of these things is immaterial. The fact that you have a particular surname means you are Brahman. Let's not understand Brahman in that sense there. Brahman here refers to an educated individual, one who is educated in especially spiritual knowledge, who, as I said, can lead from the front. So the Muni wants him. You'll get all these things you want. You'll even have death under your control, but you have to be very careful of the Brahman class. Kyo? Because he says, tab ke prabhav se Brahman sadaiva balwan hote hai. So why should you be careful of the Brahman class? Because they remain forever strong as a result of their tapa. So because of the penances that they undertake, because of the pujas that they undertake, because of the scriptural study that they undertake, because they are become an authority on scriptures, on Sanatan Dharma,
they will always remain strong. So how do we become strong Hindus? That's the question we need to ask in this day and time. How do we become strong Hindus? How do we become strong Sanatanis? We are not, our strength as a Hindu is not determined by how much I can criticize another religion. My strength as a Hindu is not determined by how much I can find fault with what others have done. My strength as a Sanatani, my strength as a Hindu is, am I striving to become a Brahman? Who does tap? Are we all striving to become Brahmins? Because the potential is there. So if we want to remain strong and we want to remain invincible as Sanatanis, we must all move towards becoming Brahmins. In other words, we must understand Sanatan Dharma. We must understand the scripture. We must understand the teachings of our scriptures. We must not go according to whim and fancy. So that's a very important lesson that we are getting here in the context of the story. कि तप के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं. A knowledgeable person is always strong. Somebody who has the knowledge, is very hard to beat that person in any kind of duel. So this is why Muni says that, you can get everything you want, Pratap Bhanu, but you need to be careful of this Brahman. Which Brahman? The one who is always strong based on the knowledge that he or she has acquired. उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता है. When that person gets angry, nobody will be able to protect you against that. And he goes on to say, therefore, king, if you can get such a Brahman under control, in other words, if you can become favorable, make them favorable towards you, who, this strong Brahman who knows Sanatan Dharma, if you can make them favorable towards you, then even Brahma, Vishnu, and Mahesha will be under your control. So the Trinity will be nothing when it comes to having control over them, because you would have got the Brahman under control. So why is the Brahman being made to be greater than Brahma, Vishnu, and Mahesh? But this is the beauty of Sanatan Dharma. The person who understands Sanatan Dharma, who understands what the scripture says, becomes the favorite of even the gods. Even the gods start listening to the bhakta, to the devotee. So if the Brahman, who is a true devotee, by knowing what is in the scripture, if you have that person on your side, then you can consider that even God is on your side. The Muni then goes on to say that no amount of strength will be able to overcome the learned Brahman, the Pandit, so to speak. Pandit means knowledgeable person. And this I can tell you with both my arms raised up in the air towards heaven. This is how sure I am about this here. Therefore, listen carefully, king. Don't fall on the wrong side of Brahmins, of learned individuals. Because if you go against the learned people and the learned class, then that can bring about your destruction. So you see, again, my point I want to make, how do you show your strength as a Sanatani? People say that Hinduism is under attack from other religions, from other people. One of the reasons why it is under attack from others is because we as Hindus are weak when it comes to understanding what our Dharma is all about. That is the weakness that people are thinking. It's not the fact that I'm not picking up a sword and going and fighting with somebody. That's not the strength I need. I don't need to go and fight people physically. But if I strengthen myself on what are the tenets and principles of Sanatan Dharma, nobody can destroy me. For the next 1,000 years, nobody can destroy us.
if we become strong in our knowledge of Sanatan Dharma. So having listened to the words of this Muni, the king became very happy. And he says, "Oh, my master, now nobody can destroy me." Right? Aapki prasannata se ab mera sadeva kalyan hai. I will always be in a good position. Now notice Pratap Bhanu's reaction. He is only reacting to the part in which the Muni told him that you will get death under control, you will get old age under control, you'll get all these things under control, but you need to be careful of the learned people of society. Notice how he sidestepped that issue. He's not interested in that. He's only interested in the part in which he said that you will get all these things. So this is something we need to be careful of. Very often we get carried away with the good things, we forget about the challenges. So the Muni then says, "Eva mastu," may it be so. And Tulsidas says here that Eva mastu kahi kapata Muni. So he refers to him as a kapata Muni because this is not truly a Muni. It's a king who is an enemy of Pratap Bhanu, who's trying to bring the downfall of Pratap Bhanu. He says, "Eva mastu, may it be so, may your kalyan be so. Lekin, ek baat ko yaad kijiye. Remember one thing. You must never tell anybody about this meeting of ours. You mustn't tell anybody about this route that you used to come to me. Van mein marg bhul jana. Forget. Kisi se nahi kehna. Aur yadi kahoge, to mera dosh nahi hai. If you tell anybody about the path to this ashram or about this meeting of ours, then I'm not responsible for the repercussions of that." So that is the warning that Muni gives. तो यहाँ पर हम आज इस पाठ को विश्राम करते हैं. आइए हम विसर्जन से विश्राम करते हैं. कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. 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 सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई रघुवर, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई रघुवर, राम चरण सुखदाई।
चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर यो है, जटा शंकरी नाम पर यो है, त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम जरन सुखदाई। भज मन राम जरन सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रयो लिवलाई। सोई चरण के वट दोइनी ने, सोई चरण के वट दोइनी ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रात सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाए। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र धराई। रिपु को अनुज विभीषण निशाचर। रिपु को अनुज विभीषण निशाचर, परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई।
सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नयन रथ नारे छवि कोटि काम हारे हलक की बलन पलक की छलन पीत पति हलन लतक सुंदर वन माला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की अंग सिय शोभा की खानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की भीर शत्रुघ्न रूप रसाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की सदा तुम दीन नहितकारी अधम के वट शबरी तारी गीत की कर्म गति न्यारी सुरन को ईश कौशलाधीश रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की चरण सेवत अंजन खेला प्रेम रस बाटत दीन दयाल बरस रही पुष्पों की जय माँ बात भय हर सदा सुख करन हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सांवरिया नयन विशाला की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं
पूजाञ्चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वम् एव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष त्वं परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री बजरंग बली महावीर स्वामी की जय। जग जगनी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।